قدیم زمانے کی بات ہے۔ ملکی ایران پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا نام بہرام تھا۔ ایران کے مشہور شہر نیشاپور میں اس بادشاہ کا شاندار محل تھا۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے تاجر اپنا مال نیشاپور لاتے اور یہاں فروخت کر کے خوب منافع کماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب کوئی تاجر اپنا مال نیشاپور لاتا تو وہ سب سے پہلے بادشاہ بہرام کو دکھاتا۔ بادشاہ جس چیز کو پسند کرتا وہ اسے منہ مانگے داموں خرید لیتا۔ ایک بار ایک تجارتی قافلہ نیشاپور پہنچا۔ قافلے والوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق شاہی محل کے سامنے کھلے میدان میں خیمے لگا دیے اور اپنا سارا سامان ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ بادشاہ اپنی پسند کی چیزیں انتخاب کر سکے۔ بادشاہ بہرام وزیروں اور امیروں کے ساتھ سامان دیکھنے آیا۔ وہاں طرح طرح کی نایاب چیزیں تھیں، چین اور شیشے کے نہایت نازک برتن، ریشم کے قیمتی لباس جو سونے اور چاندی کی باریک تاروں سے بنے تھے، جگمگاتے ہوئے ہیروں جواہرات کے زیور، خوبصورت قالین اور روئیں دار گالیچے۔ بادشاہ ایک ایک چیز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اتنے میں سامان کے قریب سے ایک نہایت حسین اور معصوم لڑکی گزری۔ بادشاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی بادشاہ کے سامنے سے گزر کر ایک خیمے میں چلی گئی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ معلوم کرے یہ لڑکی کون ہے۔ وزیر نے تحقیق کی اور آ کر بتایا کہ قافلے کے سردار کو یہ لڑکی جنگل میں ملی تھی۔ اس وقت یہ بہت چھوٹی تھی، لہٰذا سردار نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا اور اس کا نام دل آرام رکھا۔ بادشاہ بہرام نے فوراً سردار کو بلایا اور لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ سردار نے عرض کیا، جہاں پناہ میں خود نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ لگتا ہے کہ کسی نے اسے یرغمال بنا کر اس کے خاندان سے بھاری رقم لینے کا ارادہ کیا ہوگا، مگر کسی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا اور اسے جنگل میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سردار کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، اگر اس شخص کا مقصد صرف رقم حاصل کرنا تھا تو یقیناً یہ لڑکی کسی امیر خاندان سے ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا، جب یہ آپ کو ملی تھی یہ کون سا لباس پہنے ہوئے تھی؟ سردار بولا، جہاں پناہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ خیمے میں گیا اور ایک چھوٹا سا صندوق اٹھا لایا۔ لڑکی بھی اس کے پیچھے تھی۔ سردار نے صندوق کھولا اور اس میں سے نہایت قیمتی ریشمی لباس نکالا اور بادشاہ کو دکھایا۔ پھر اس نے لڑکی کے بازوں پر بندھی ہوئی سنہری زنجیر بھی دکھائی اور کہا، حضور، جب یہ مجھے ملی تھی اس کے گلے میں یہ ہار تھا۔ جب یہ بڑی ہوئی تو یہ ہار چھوٹا پڑ گیا، لہٰذا میں نے اسے اس کے بازوں پر باندھ دیا۔ بادشاہ نے لباس اور زیور دیکھ کر کہا، یہ لڑکی یقیناً کسی امیر گھرانے سے ہے، ہو سکتا ہے اس نے کسی شاہی محل میں آنکھ کھولی ہو۔ سردار نے ادب سے کہا، حضور، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی تھی، نہ اپنا نام بتا سکتی تھی، نہ اپنے خاندان کا کچھ معلوم تھا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسے نغمے گاتی ہے جو ہماری زبان میں نہیں ہیں، شاید اس نے یہ اپنے گھر والوں سے سیکھے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہم اس کا کوئی نغمہ سننا چاہتے ہیں۔ سردار نے دل آرام کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی، بادشاہ سلامت کو کوئی اچھا سا گیت سناؤ۔ دل آرام کچھ دیر خاموش رہی، پھر میٹھی آواز میں ایک نغمہ گانا شروع کر دیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اس قدر پیارا تھا کہ بادشاہ اور وزیر خوشی سے جھوم اٹھے۔ جب لڑکی خاموش ہوئی تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میاں سردار، ہم اس لڑکی کا گیت سن کر بہت خوش ہوئے۔ ہم اسے اپنے محل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تم بدلے میں جتنی رقم چاہو لے لو۔ سردار نے عرض کیا، جہاں پناہ میں نے اسے بیٹی کی طرح پالا ہے، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے لونڈی یا غلام کی طرح بیچ دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہم اسے لونڈی نہیں، اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے، تم مطمئن رہو۔ سردار نے کہا، حضور، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میری بیٹی اب شاہی محل میں رہے گی، مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، تم جب چاہو اس سے مل سکتے ہو۔ یوں دل آرام قافلے سے نکل کر شاہی محل آ گئی۔ بادشاہ نے اس کے رہنے کے لیے ایک الگ حصہ مخصوص کیا اور اسے پڑھانے کے لیے ایک استاد مقرر کر دیا۔ دل آرام نے جلد ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا اور کئی نغمے بھی سیکھ لیے۔ بادشاہ اور شہزادی مہر رخ جب بھی اس کی آواز سنتے خوشی سے جھوم اٹھتے۔ وقت گزرتا گیا، دل آرام محل میں رہنے لگی، مگر چونکہ اس کی پرورش کھلے ماحول میں ہوئی تھی، اس کے لیے محل کے آداب اپنانا مشکل تھا۔ کبھی کبھی وہ سیدھی سادی بات کہہ دیتی جو سب کو بری لگتی، مگر بادشاہ کی محبت کی وجہ سے کوئی اسے کچھ نہ کہتا۔ ایک روز محل میں ایک بڑی تقریب تھی۔ امیروں کی بیگمات اور ان کی بیٹیاں مدعو تھیں۔
उस तकरीब में शहज़ादी महर्रख और दिल आराम ने कीमती लिबास पहन रखे थे। शहज़ादी के गले में सफ़ेद मोतियों का नहायत नायाब हार था। सब लड़कियां उसकी तारीफ़ कर रही थीं। दिल आराम ने सादगी से कहा, ये हार खूबसूरत है, मगर मैंने उससे भी ज़्यादा कीमती हार देखे हैं। सब लड़कियां डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगें। शहज़ादी के सामने ऐसी बात कहना बेअदबी समझा जाता था, मगर शहज़ादी ने नरमी से कहा, मैं समझ गई, आखिर तुम काफ़िले वालों के साथ पली हो। बाद में एक लड़की ने दिल आराम से कहा, शहज़ादी से इस तरह बात करना गुस्ताखी है। मगर दिल आराम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सादा लोगों में पली हूँ, जो बात सच्ची हो वही कहती हूँ। इतने में बादशाह आया और दिल आराम से नगमा सुनाने को कहा। बादशाह उसकी आवाज़ पर फरीफ्ता था, चाहता था कि वो हर वक्त उसके सामने रहे। एक दिन बादशाह ने शिकार पर जाने का इरादा किया और महर्रख और दिल आराम को भी साथ लिया। नज़दीक ही एक जंगल था जिसमें खूबसूरत झील थी। बादशाह के लिए खीमे लगा दिए गए। किनारे पर कई किश्तियाँ भी मौजूद थीं। बादशाह, दिल आराम, महर्रख और वज़ीर किश्ती में बैठकर झील के दूसरे किनारे पहुँचे। करीब ही चंद हरन घास चर रहे थे। एक हरन बगैर डरे खड़ा रहा। दिल आराम बोली, ये हरन बड़ा बहादुर मालूम होता है। उसने मज़ीद कहा, जहाँ पनाह, क्या आप एक ही तीर से उसके कान और पछले पाँव को निशाना बना सकते हैं? बादशाह ने सोचा, फिर निशाना लगाया। पहला तीर हरन के कान को छूता हुआ गुजरा। हिरन ने अपना पछला पाँव कान की तरफ उठाया जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हो। बादशाह ने फ़ौरन दूसरा तीर चलाया जो सीधा उसके पाँव में जा लगा। दरबारी खुशी से नारे लगाने लगे। सबने बादशाह की खूब तारीफ़ की। फिर बादशाह ने दिल आराम से कहा, हमारे दरबारियों ने तो बहुत तारीफ़ें की, मगर तुम खामोश हो, तुम भी कुछ कहो। दिल आराम बोली, हजूर, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जंगल में बहुत से गडरियों को ऐसे निशाने लगाते देखा है। सब सहम गए। बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसे लगा कि दिल आराम ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया है। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, ले जाओ उसे यहाँ से, ये महल में रहने के लायक नहीं। इसके कीमती कपड़े और ज़ीवर उतार लो और उसे जंगल में छोड़ दो। दरबारी दिल आराम को ले गए, इसके ज़ीवर और लिबास उतार लिए और उसे जंगल में छोड़ आए। शाह बहराम महल वापस चला गया, मगर जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हुआ, उसे अपनी ज़्यादती का एहसास हुआ। दिल आराम तो उसके लिए बेटी जैसी थी और वो सोचने लगा, न मालूम उस संसान दहशतनाक जंगल में उसके साथ क्या हो रहा होगा। लड़की पर क्या गुजरी होगी। ऐसा ना हो कि वो सर्दी से अकड़ कर मर जाए या कोई जंगली दरंदा उसे फाड़ खाए। उसने फ़ौरन अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि वो अभी और उसी वक्त जंगल में जाएं और दिलाराम को ढूंढ लाएं। सिपाही दिलाराम को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ दौड़े। इस वक्त तक तूफान थम चुका था। सिपाहियों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन दिलाराम कहीं नहीं मिली। वो खाली हाथ वापस लौट रहे थे और शाह बेराम बड़ी बेचैनी से महल में टहल रहा था। इसने शाही बावर्ची से वो सारे खाने तैयार करवा रखे थे जो दिलाराम को पसंद थे, लेकिन जब उसने देखा कि सब सिपाही खाली हाथ वापस आ गए हैं तो गम के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने खुद भी खाना नहीं खाया। दिलाराम के बिछड़ जाने का उसे इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया। बीराम को बार बार ख्याल आता था कि मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उसे ये भी डर लगता था कि कभी वो सौदागर जिसने दिलाराम मुझे दी थी वापस महल आ गया तो मैं उसे क्या मुन्ना दिखाऊंगा। शाह बेराम तो पहले ही बीमार था। शहजादी माहिरुख भी परेशान रहने लगी। उसे भी दिलाराम के मीठे मीठे गीत याद आते थे। बादशाह और उसकी बेटी को महल सोना लगने लगा। वो महल जहाँ हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ रहती थीं, अब उजड़ा और वीरान नज़र आने लगा। अब ज़रा दिलाराम का हाल सुनो कि उसके साथ क्या हुआ। सिपाहियों ने उसे जंगल में छोड़कर वापस चले गए और वो जंगली दरंदों के खौफ से उधर उधर भागती फिरती रही। इत्तेफाक से वहाँ से एक शख्स का गुज़र हुआ। ये शख्स किसी काम से निशापुर आया था और अब वापस अपने शहर कुआ आबाद जा रहा था। जहाँ से जंगल ख़त्म होता था वहाँ आगे एक पहाड़ था और कुआ आबाद इस पहाड़ के दूसरी तरफ था। इस शख्स ने दिलाराम की दुख भरी कहानी सुनी तो इस पर रहम आया और वो इसे अपने साथ कुआ आबाद ले गया। वो शख्स एक गदरिया था और उसके पास बहुत सी भीड़ें बकरियां थीं। इसका एक बेटा था जो रोज़ाना उन्हें चराने जंगल में जाता था। इसका नाम दारा था। गदरिया लड़की को अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने दारा को सारी बात बताई और ताकीद की कि ये मुसीबत की मारी लड़की है, उसे कोई दुख ना पहुँचे।
दारा हंसमुख और नेक लड़का था। उसने पूरी कोशिश की कि दिलाराम खुश रहे और अपना गम भूल जाए। दिलाराम इन बाप बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो चरवाहों का लिबास पहनकर दारा के साथ बकरियां चराने जंगल जाती थी। इस हलिये में उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही दिलाराम है जो शाह बैराम के महल में शहजादियों की तरह रहती थी। दारा एक बहुत अच्छा तीरंदाज भी था। एक रोज़ जब वो और दिलाराम भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो दिलाराम ने दारा से पूछा, क्या तुम एक ही तीर से बकरी के कान और उसके पिछले खुर को निशाना बना सकते हो? ये सुनकर दारा हंस पड़ा और बोला, ये तो हम गदरियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। उसने कमान संभाली, तीर चढ़ाया और दूर घास चरने वाली बकरी की तरफ छोड़ दिया। तेज तीर बकरी के बाएं कान को छोता हुआ गुजर गया। उसी वक्त बकरी ने अपना पांव उठाकर कान खजाना शुरू कर दिया। दारा ने फौरन दूसरा तीर चढ़ाया और कान का निशाना लेकर छोड़ दिया। तीर कान को चीरता हुआ उसके पांव में पिवस्त हो गया। दिलाराम दौड़ कर गई और बकरी के पांव से वो तीर निकाल लाई। फिर वो हंसकर बोली, वाकई ये काम गदरियों के लिए आम बात है, लेकिन बादशाहों के लिए नहीं। दारा हैरान हुआ। दिलाराम ने बताया, एक दिन शाह बैराम ने भी ऐसा ही निशाना लगाया था। इसके वज़ीर अमीरों ने बहुत तारीफ़ की थी, मगर मैंने सच कह दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तो गदरियों को ऐसे तीर चलाते देखा है। ये बात बादशाह बर्दाश्त न कर सका और उसने मुझे जंगल में फेंकवा दिया। दारा को ये सारी बात पहले थोड़ी बहुत पता थी, मगर आज तफसील सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे अफसोस हुआ कि एक छोटी सी बात पर शाह बैराम ने एक मासूम लड़की पर कितना जुल्म किया। उन्हीं दिनों दारा के वालिद को नीशापुर जाना पड़ा। वहाँ उसने लोगों से सुना कि दिलाराम के गुम होने के बाद शाह बैराम सख्त बीमार रहने लगा है। जब वो वापस आया और ये बात दिलाराम को बताई तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे रोता देखकर दारा के वालिद ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शाह बैराम के पास छोड़ आऊँ, वो तुम्हें पाकर बहुत खुश होगा। दिलाराम ने आंसू पूंछते हुए जवाब दिया, आप दरस्त कहते हैं, मगर मैं शाह बैराम के पास उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक मेरी सच्चाई उस पर ज़ाहिर ना हो जाए। अगर आपको मैं बोझ लगती हूँ तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। दारा के वालिद ने जल्दी से कहा, नहीं बेटी, तुम हरगज़ बोझ नहीं, बल्कि मैं तो शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने हमारी बकरियों के लिए एक और चरवाहा दे दिया है। इधर शाह बैराम बीमारी से इंढाल रहता था और कोई तबीब उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहा था। हर इलाज नाकाम हो रहा था। आखिरकार वो तबीबों से मायूस होकर फिर से शिकार पर जाने लगा कि शायद दिल बहल जाए। एक रोज़ वो शिकार करते करते अपने साथियों से जदा हो गया। हिरन तो हाथ ना आया, मगर भूख प्यास से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो घोड़ा रोक कर उधर उधर देखने लगा कि शायद कहीं पानी मिल जाए। इत्तेफाक से उसे दूर बकरियों का रिवड़ नज़र आया। वो रिवड़ के करीब गया। वहाँ दो नौजवान, दारा और दिलाराम, बकरियां चराने में मसरूफ़ थे। शाह बैराम ने इनसे पानी मांगा। दोनों ने जल्दी से उसे घोड़े से उतारा और दरख्त के नीचे बैठाया। दारा बकरी का ताज़ा दूध ले आया और दिलाराम बादशाह को कपड़े से हुआ करती रही। दूध पीते ही बादशाह की तबीयत कुछ संभलने लगी। बादशाह शिकार के लिबास में था, इसलिए दारा ने उसे पहचाना नहीं, मगर दिलाराम ने इशारे से बता दिया कि ये बादशाह है। इसी दौरान दारा ने बादशाह की कमान घोड़े से उतार कर देखना शुरू कर दी। बादशाह ने कहा, ये तुम्हारे हाथ लगाने की चीज़ नहीं, गदरियों के लिए तो बकरी हांकने की छुड़ी ही काफ़ी है। मगर दारा ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने कमान में तीर रखा और चंद कदम दूर चरने वाली बकरी के कान का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर कान को चीरता हुआ पाँव में जा लगा। बादशाह हैरान रह गया। उसे फ़ौरन दिलाराम की वो बात याद आई कि ये निशाना गदरिये आम तौर पर लगाते हैं। वो दिल ही दिल में टूट सा गया और बोला, दिलाराम सच कहती थी। ये सुनकर दिलाराम ने अपने हाथ पर बंधा वो हार बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने उसे देखा और पहचान लिया। वो चौंक कर बोला, तुम दिलाराम हो। दिलाराम उसके कदमों में गिर पड़ी। बादशाह ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। फिर उसने दारा से पूछा, ये नौजवान कौन है? दिलाराम ने सारी बात सुना दी कि किस तरह उसके वालिद ने उसे जंगल से उठाया, पाला, बचाया। बादशाह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वो दारा और दिलाराम को लेकर कुआ आबाद गया। दारा के वालिद से मिला, इसकी नेकी की बहुत तारीफ़ की। फिर वो तीनों निशापुर लौटे। दारा के वालिद को बड़ा इनाम दिया। दारा को महल में बेहतरीन दर्जा दिया और दिलाराम की शादी दारा से कर दी
اور پھر سب خوشی سے رہنے لگے۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔